Welcome to my channel Biohealth Academy students. Our today's topic is the search for genetic material. Now what happened actually? So we have done few scientists who contributed in the field of genetics. So Mendel is a big name. So in 1866 he gave us the principles of inheritance. And at that time he was not aware of the genes and chromosomes. He called that something which carries the characters from one generation to other as factors. So this we know. And at the almost approximately same time, that is 1869, so it is Frederick Mischer who gave us the structure nuclein, which he isolated from the pus cells, that is white blood corpuscles, and he called later on as nucleic acids. Then so came Sutton and Boveri in 1902. So they gave us chromosome theory of inheritance, in which it was indicated that this something which is responsible for controlling the characters is present on the chromosomes and is carried from the one generation to other through the chromosomes. And later on Morgan came in 1933, T.H. Morgan, so which he confirmed the findings of Sutton and Boveri. That means till now it was confirmed that there is something which carries the characters from the one generation to other, and till that we were aware of DNA, RNA and proteins, carbohydrates, all these molecules were known. So therefore the studies of these Sutton and Boveri and Morgan, so that consolidated the research to the molecular basis. Therefore the answer was at the molecular level. The big question at that time was whether it is DNA genetic material or RNA genetic material or proteins or the carbohydrates. So this was the big question कि this something is what. So ये molecule जो है वो क्या है, कौन सा है जो इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. तो जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं हम लोग, कि जो करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जिसमें कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड सो विच कैरीज द करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. ये इस टाइम तक तो थोड़ा सा हमें पता ही था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पर वो कौन है ये बिग क्वेश्चन था. तो इसलिए फिर आगे जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस सर्च में आगे अपनी एक्सपेरिमेंट्स या अपनी रिसर्च को किया कि टू फाइंड आउट कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल. तो उसमें एक बड़ा नाम जो है वो ग्रिफ्थ का आता है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का. और इसके बाद एक हम हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो देयर आर टू experiments which contributed to find the material which can be called as genetic material. Rather I should say they concluded that DNA is the genetic material. How they perform the experiments, let's see. So the first experiment which is performed by the Griffith, so that is called as transforming principle. Now transforming principle is what? So this transforming principle is that something so which carries DNA oblique RNA or protein or carbohydrates. So that's something so which carries characters from one generation to other. तो उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया, उस सब्सटेंस को, समथिंग को. पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे का कोई चीज़ जो लेके, वो समथिंग जो है लेके, ठीक है, अपने करेक्टर्स को उसकी तरह बना ले. सो अपने करेक्टर्स जो है चेंज कर ले. सो वन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड, दैट इज चेंज्ड इनटू द अनदर बाय पिकिंग अप, by acquiring some substance from the outside, that is foreign material from the outside. So then it is called as, the phenomena is called as transformation. And that something which changed the one organism, so the characteristics of one organism to the another organism, so is called as transforming principle, right? So now, so transformation, the phenomena by which an organism change from one type of the to another. ठीक है, सो एक टाइप से दूसरी में बदल जाता है बाय एक्वायरिंग सम फॉरेन मटेरियल. मान लो कि मैं ये कहूँ कि एक बैक्टीरिया है सो जो कोई डिजीज नहीं करता है, पर उसने किसी का DNA या प्रोटीन मान लो पिकअप कर ली बाहर से, और वो भी और जो उसने जीन जो है, जो उसने DNA या प्रोटीन पिकअप की है, तो वो है उस बैक्टीरिया की जो डिजीज कॉज करता है. तो अब ये जिसने पिकअप की है वो भी डिजीज करने लगेगा. तो इसका मतलब इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन विरुलेंट टू विरुलेंट फॉर्म, मतलब नॉन डिजीज कॉजिंग टू डिजीज कॉजिंग.
So this is what the meaning is transformation. So acquiring some foreign material so is called as transformation. Now this foreign material so it will be called as transforming principle. So ये transforming principle. So ये नेम जो है ना ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद कोई प्रिंसिपल है ना कोई किसी लॉ के बारे में बात करें हम लोग, नहीं, हम उस समथिंग के बारे में बात करें तो उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं. तो नाउ सो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, so that is given by the Frederick Griffith 1928. Yeah, so he performed so a series of experiments. While उसका जो experimental material था तो वो क्या था, so it was mice that is behaved as host, and then he took the bacteria Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, तो ये आपको नाम पता है, जो निमोनिया कॉज करता है उसको बोलते हैं, एंड इसका ओल्ड नेम डिप्लोकोकस निमोनिया है. तो ग्रिफ्थ took mice as well as the bacteria. The bacteria is Streptococcus pneumoniae, so which causes pneumonia, hence it is also called as pneumococcus bacteria. Now it has two strains. So one is causing the disease, the other is not causing the disease. So there are two strains, smooth strain and rough strain. Smooth is S3, 3 is Roman type लिखना, so S3 type, and rough strain is R2 type. Yeah, so he took both the strains for his experiment, smooth strain and rough strain. So he cultured them in the separate petri dishes and he found the difference between both. So what was the difference? It looked like this, smooth strain looked like this, that is having a coating around it which is mucus coat. So you have studied in the +1 mucopolysaccharides which are a little bit sticky in nature. So that forms a outer coat here, mucus coat, mucopolysaccharides, but it is lacking here in the R2 type. There it is not present, and this gives it the shiny appearance, this mucus coat, as well as it makes it protective against the various enzymes when a person so it goes inside the intestine of the person, somehow it is ingested, then this mucus coating protects it from the action of the enzymes, and it reaches into the blood of the person and causes pneumonia there. But in this case, there is no protective coating is present. Hence, when it reaches the intestine, it is killed by the enzymes. Hence, it is unable to cause a disease. This is the reason. So, it is mucus coat provides its shiny appearance also. So then, so mucus coat polysaccharides present which protected from the enzymes and provided shiny appearance. No mucus coat. Then it forms a smooth and shiny colonies. जो इसकी petri dish में colonies बनेंगी वो बड़ी smooth बनेंगी एंड शाइनी अपीयरेंस होगी. ये रफ कॉलोनीज बनाएगा, दैट इज व्हाई इट इज सो नेम्ड. देन विरुलेंट है, विरुलेंट का मतलब डिजीज कॉजिंग है, ये निमोनिया कॉज करेगा सो जिस भी होस्ट में जाएगा. और ये नॉन विरुलेंट है, डजंट कॉज एनी निमोनिया इन द होस्ट जिसमें भी जाएगा. तो ये डिफरेंस है इसमें, तो इसने दोनों ही लिए. तो नाउ ही कल्चर दिस बोथ बैक्टीरिया इन द सेपरेट कल्चर मीडियम्स इन द पेट्री डिशेस यू कैन से. एंड देन सो आफ्टर कल्चरिंग देम फॉर द फ्यू डेज, देन ही एक्सट्रैक्टेड द बैक्टीरिया and filled the separate injections for that. किसी में स्मूथ जो है ये 3 टाइप जो है भर लिया, किसी में R2 टाइप बैक्टीरिया. तो इस तरह से अलग अलग उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया लिए अभी हम करेंगे. तो उसने इंजेक्शंस में उनको भर लिया और माइस जो हैं उनको भी चूज कर लिया कि इस माइस को मैंने क्या देना है, इसको क्या देना. तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंटल मटीरियल अपने तैयार कर लिए और एक्सपेरिमेंट किए. तो वो उसके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, तो वो मैंने एक चार्ट की फॉर्म में आपके लिए बना दिए हैं. बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ सो सबसे पहले टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो उसने इंजेक्ट किए, एंड उसके बाद इफेक्ट माइस के ऊपर क्या हुआ. तो नेचुरली ये देखो जब इंजेक्शन किसी को दिया जाता है तो उसके 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद मतलब 10 दिन बाद ही इफेक्ट आएगा. तो वो इफेक्ट जो है उसने देखा और उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि ये माइस को क्या हुआ है, तो उसके ब्लड सैंपल्स जो है वो माइस के उसने ऑब्जर्व किए, तो कंफर्मेशन के लिए. तो ये देखो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसने वो क्या है कि ही इंजेक्टेड लिविंग S3 टाइप बैक्टीरिया टू द माइस. नेचुरली हमारा एक्सपेरिमेंट मटीरियल माइस है, तो माइस को उसने लिविंग S3 टाइप बैक्टीरिया दिए. ये आपका मेन पॉइंट है, लिविंग S3. तो आफ्टर अ वीक जब उसने ऑब्जर्व किया माइस को, तो माइस तो मतलब दे डाइड सो ड्यू टू निमोनिया. ठीक है, सो ये डिजीज मतलब उनको हो गई और दे डाइड. पर ये वाकई उनकी डेथ जो है वो इस बैक्टीरिया की वजह से हुई है या कोई और कारण है,
तो ये कंफर्म करने के लिए उसने उसका ब्लड सैंपल जो है चेक किया, तो उसमें उसको S3 टाइप बैक्टीरिया मिले। लिविंग जो बैक्टीरिया, मरे हुए जो माइस थे उनमें उसके ब्लड सैंपल्स में S3 टाइप बैक्टीरिया मिले। तो क्योंकि ये तो पता ही था कि S3 टाइप बैक्टीरिया जो निमोनिया करता है, तो दैट मीन्स कि ये जो माइस है उनकी डेथ इसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ही इंजेक्टेड लिविंग R2 टाइप बैक्टीरिया जो दूसरी पेट्री डिश में ग्रो हो रहे थे, तो ये इंजेक्ट किए। तो देन आफ्टर 1 वीक ही ऑब्जर्व दैट माइस आर सर्वाइविंग। सो कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो जब उनका ब्लड सैंपल चेक किया गया तो उसमें भी लिविंग R2 टाइप बैक्टीरिया मिले उसको। पर इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि R2 टाइप बैक्टीरिया है तो है ब्लड में, लिविंग फॉर्म में है, बट दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज हैज दे आर नॉन विरुलेंट। ठीक है, तो जैसे इसमें कहा गया। तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया इससे जो ये एक्सपेरिमेंट है कि S3 डिजीज कॉजिंग है, निमोनिया कॉजिंग है, विरुलेंट है, एंड R2 जो है वो निमोनिया नहीं करता है। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि ये जो S3 बैक्टीरिया थे लिविंग, तो उनको एक टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको बर्नर के ऊपर रख दिया टेस्ट ट्यूब को, सो दैट S3 टाइप बैक्टीरिया डाई। सो दैट इज हीट किल्ड कर दिया उसने। तो S3 टाइप बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया और उस हीट किल्ड बैक्टीरिया का फिर इंजेक्शन भरा और माइस को दे दिया। तो नेचुरली जब वो हीट किल्ड है तो उसको डिजीज नहीं करेगा वो। ठीक है, सो जब वो किली हो गया तो माइस जो है वो सर्वाइव किए, वो कोई डिजीज नहीं हुई। एंड देन जब उनका ब्लड सैंपल देखा गया तो उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं पाए गए, क्योंकि ये हीट किल्ड थे तो ये लिविंग तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ब्लड में ये पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर ब्लड में कोई बैक्टीरिया नहीं पाए गए। तो ये भी कंफर्म हो गया कि हीट किल्ड डिजीज नहीं करते हैं। तो S3 लिविंग करते हैं पर हीट किल्ड डिजीज नहीं करते हैं। तो अब ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट है ये आपका मेन है। तो अब देखो उसने क्या किया, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाया इंजेक्शन में कि एक तो R2 टाइप बैक्टीरिया जो लिविंग थे वो ले लिए और एक हीट किल्ड S3 टाइप बैक्टीरिया थे उनको ले लिया, इकट्ठा एक मिक्सचर बनाया। तो मिक्सचर बना के इंजेक्शन दिया। तो अब ये आपने प्रूव कर चुके हैं, पहले ही वो ग्रिफ्थ प्रूव कर चुका था कि R2 टाइप बैक्टीरिया जो लिविंग है वो डिजीज नहीं करते और हीट किल्ड भी नहीं करते हैं स्मूथ टाइप के। पर अब उसको ये देख के बहुत हैरानी हुई कि सम ऑफ द माइस डाइट। ठीक है, जबकि नहीं मरने चाहिए थे, ये भी यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो पर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि सम ऑफ द माइस डाइट, मतलब सारे नहीं मरे बट मोस्ट ऑफ देम दे डाइट। तो अब उसने जब उनके ब्लड सैंपल चेक किए तो उसमें लिविंग R2 बैक्टीरिया तो आने थे, ठीक है, बट कुछ जो है वो S3 टाइप बैक्टीरिया भी लिविंग आए। ठीक है, अब ये बड़ी एक मतलब हैरानी की बात है कि जब हीट किल्ड हमने दिए थे तो तब तो उसके ब्लड में कोई बैक्टीरिया नहीं पाए गए, पर अब यहाँ पे S3 बैक्टीरिया लिविंग कहाँ से आ गए। ठीक है, सो ये एक सोचने वाली बात थी। तो इस तरह से सो ये जो मेन चीज है कि कुछ माइस डाई, डेथ हुई उनकी, और उनके ब्लड सैंपल में दोनों तरह के बैक्टीरिया जो है मिले, S3 लिविंग भी मिले और R2 लिविंग भी मिले। अब ग्रिफ्थ ने एक हाइपोथेसिस इस एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बनाया कि जो R2 टाइप बैक्टीरिया लिविंग थे, क्या सो ये वाले R2 टाइप बैक्टीरिया जो लिविंग है, तो उन्होंने जरूर ये जो अपने रिलेटिव्स हैं उसके S3 टाइप बैक्टीरिया, उनको साथ में क्योंकि उनके थे, तो उनमें से कोई चीज जो है वो ले ली है, कोई बायोकेमिकल ले लिया हुआ है। ठीक है, इसमें से अब वो बायोकेमिकल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, और कोई ये वाली कोटिंग भी हो सकती है म्यूकस की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आई मीन। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो उसने ये नाम नहीं दिया कि किसने किया, बट उसने कहा कि कोई बायोकेमिकल, सो इन हीट किल्ड S3 टाइप जो उसके रिलेटिव्स थे उनमें से ले लिया एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ टू S3 लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, अपने आप को उसने S3, तो इसका मतलब ये जो S3 लिविंग मिले हैं उसके ब्लड में, तो ये एक्चुअली R2 से ही बने हैं। तो R2 से S3 लिविंग में, R2 लिविंग थे तो वो भी S3 लिविंग में बदल गए बाय टेकिंग द बायोकेमिकल फ्रॉम देयर S3 टाइप रिलेटिव्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इसका मतलब। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग, मैंने जो पहले समझाया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो बायोकेमिकल है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो वो समथिंग जो है वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बायोकेमिकल। तो अब मेंडल का तो यही इसका ग्रिफ्थ का तो जो है यही क्या कहना था कि कोई बायोकेमिकल जो है उसने ले लिया। अब वो कौन सा है, तो आगे फिर 3 साइंटिस्ट जो है आए, तो जिन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया कि एक्चुअली इट इज द DNA। ग्रिफ्थ ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बेसिस पे उसने अपना ग्रिफ्थ हाइपोथेसिस, मतलब अपनी जनरलाइजेशन दी, जिसको हमने ग्रिफ्थ इफेक्ट बोला। तो वो क्या है, सो ग्रिफ्थ हाइपोथेसिस, जिसको ग्रिफ्थ इफेक्ट बोलते हैं, तो उसने ये कहा कि R2 टाइप बैक्टीरिया
which were living changed themselves into the S3 living bacteria by picking some biochemical from their dead relatives, that is heat killed S3. जो उसके डेड रिलेटिव वो कौन है, हीट किल्ड, जो जिसको साथ में हमने दिया था, तो उसका कोई ना कोई सब्सटेंस उन्होंने चुरा लिया, ले लिया और अपने आप को S3 में ही लिविंग में बदल दिया। ठीक है, तो ये उसका ग्रिफ्थ का इफेक्ट था। तो अभी भी उसने ये बताया नहीं कि बायोकेमिकल कौन सा। तो ग्रिफ्थ जो प्रिंसिपल है अब, तो मतलब सब्सटेंस है जो, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो ये ग्रिफ्थ का प्रिंसिपल है, तो कि ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनको उसने पिकअप किया होगा। तो अब इसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुई इसकी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, मतलब ये जो उसने सब्सटेंसेस दिए इन चीजों की बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया, कैरेक्टराइजेशन की गई बाय द ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड, 3 साइंटिस्ट हैं ये, मैकलिन मैककार्टी, ठीक है, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन मैककार्टी, सो 1944 में। तो उन्होंने क्या किया कि S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिए यही, और उनको फ्रैक्शनेशन करके उनके जितने भी ये पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो म्यूकस कोटिंग थी वो, प्रोटीन्स हो गए, डीएनए, आरएनए, ये सारे कंपोनेंट्स को अलग कर लिया, मतलब फ्रैक्शंस बना लिए बाय प्यूरिफिकेशन। तो फ्रैक्शनेशन की, प्यूरिफिकेशन की, और ये सारे बायोकेमिकल्स जो है वो सेपरेट कर लिए। अब जब उन्होंने सेपरेट किए तो उसके बाद दे टुक द टेस्ट ट्यूब्स। तो इन टेस्ट ट्यूब्स में उन्होंने R2 जो बैक्टीरिया थे लिविंग, ठीक है, उनको कल्चर कर लिया इस तरह से। सो दिस इज द कल्चर मीडियम, ठीक है। सो ये सारा जो है, सो ये कल्चर मीडियम है, सो जिसमें लिविंग है। सो R2 टाइप बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है सब में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कल्चर किए हुए हैं। अब एक एक करके सब में उन्होंने फ्रैक्शन डाल दिए। तो इसमें जैसे प्रोटीन डाल दी S3 की, देन इसमें कार्बोहाइड्रेट म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डाल दी। सो इसमें थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शंस जो है आरएनए डाल दिया, यहाँ पे डीएनए डाल दिया। सो यहाँ पे उन्होंने डीएनए प्लस डीएनएज एंजाइम, जो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो जो है डाला इन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर सो इसमें क्या डाला, सो प्रोटीन्स भी डाली, आरएनए भी डाला, और इन दोनों को डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेकअप करने वाली एंजाइम्स भी डाल दिए, प्रोटीएज एंड आरएनए एज, ये एज लिखा हुआ है, आरएनएज। तो ये सारा उन्होंने डाला इसमें। तो व्हाट वर देयर ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई जब प्रोटीन डाली, म्यूकस में कार्बोहाइड्रेट डाले तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, सो और यहाँ पे भी नो ट्रांसफॉर्मेशन, आरएनए डाला तो। देन उसके बाद डीएनए जब डाल वाले में देखा, तो देन R2 टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म टू S3 लिविंग बैक्टीरिया। R2 लिविंग थे तो वो S3 लिविंग में बदल चुके हैं। तो देन उसके बाद यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आई। तो अब ये प्रूफ कैसे होगा कि भी ऐसे ऑब्जर्वेशन से थोड़ा ना हुआ कि भी प्रूफ हो गया कि भी उन्होंने देख लिया कि ये S3 में बदल गए। तो प्रूफ ये है कि माइस को फिर इंजेक्शंस दिए गए, ठीक है, इन सबके, ये जो कल्चर मीडियम में से R2 टाइप बैक्टीरिया आफ्टर सम पीरियड में भी 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जब पूरा उसको टाइम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बाद इंजेक्शंस भर के तो माइस को दिए गए। तो माइस जो है वो जहां जहां हमने लिखा नो ट्रांसफॉर्मेशन वहां माइस सर्वाइव किए। तो ये सर्वाइव्ड है, सर्वाइव्ड, एंड यहाँ पे माइस किल्ड ड्यू टू डिजीज, सो निमोनिया, एंड यहाँ पे भी सर्वाइव्ड, यहाँ पे भी सर्वाइव्ड। तो इस तरह से ये बिल्कुल अब ये जो ग्रिफ्ट नहीं कर पाया था कि कौन सा केमिकल है, सो जो जेनेटिक मटेरियल है, वो मैकलियोड, मैककार्टी एंड एवरी ने करके दिखा दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, सो कि डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये अलग बात है कि कुछ साइंटिस्ट ने उस टाइम के तब भी इनकी बातों को माना नहीं, पर ये है कि ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या किया, ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने R2 बैक्टीरिया एंड S3 बैक्टीरिया लिए, और विरुलेंट, नॉन विरुलेंट मैंने बताया आपको सारा, वो उनकी पहचान बताई। फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें निकल के आया कि S3 जो बैक्टीरिया वो कॉज करते हैं डिजीज, R2 नहीं करते हैं। तो इस तरह से फिर उसने अपना हाइपोथेसिस बनाया, प्रिंसिपल बनाया, और उसको कंफर्म करने के लिए फिर मैकलियोड, मैककार्टी एंड एवरी ने एक्सपेरिमेंट किया, एंड दे कंफर्म दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सो स्टूडेंट्स, हमने ये फिनिश कर लिया टॉपिक। तो नाउ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।